Hello everyone, how are you all? So finally I'm here with my much awaited live talk show, and today our guest is Asif Khan. He is one of the most unconventional actors I have seen, I guess. His work is just amazing, and I'm here to, discuss about his 10 years of struggle and how he made it to the industry. So it takes a lot for a guy who comes from a middle class family, leaving behind everything, and just here to make his career. So, yes, I'm waiting for him to come live with me. And meanwhile, I'm sure you must have seen his latest released Patal Lok web series, which is produced by Anushka Sharma. And God, he's just amazing in that. Like, he's one of he's one of the co-actors there, and he's amazing. I just loved watching him, and I'm so glad that I could have him here and get upfront him with him and his life and his whole journey and how he did it, how he made it in the industry. He When I talked to him first time, he was really very simple and down to earth, very approachable, and I'm sure you guys will uh, love watching him today with me. I'm just waiting for him to come and join. uh, I think he's here, and let's see. I'm just waiting for him to come here and join me. So yeah, tell me who all have watched his latest series, Patalok. He's also featured in Jamtara, and he's also featured in Panchayat. He's been featured in few very nice short films. One of his iconic short film is Vacancy, and God, when you watch him, you just feel like this guy is just amazing with his acting skills, like purely amazing. So yes, I'm just waiting for him to join with me here, and let's see. Yes, and hi Asif. Hello. Hi, how are you today? Hi. I'm good. How are you? I'm great. Thank you for coming in with me here for the live interview. I'm so glad to have you here. Thank you so much. Most I welcome. was just letting know all my viewers that how amazing you were in Patalok, and Thank you. how amazing you were in Vacancy, your short film. I just loved it. I just watched it for 2, 3 times Thank you. since the day we Thank talked. you. Thank you. You're Hi, so Ram. Hi. good, and you Thank are you. so unconventional and so good, man. Like, seriously. Thank you so much. So tell me, how do you feel, after this whole Patalok's web series going, famous, and I think it was amazing. It was really good. How do you feel about it? Yeah. मतलब ऑफ कोर्स अच्छा तो फील होता है यार, मतलब कोई भी रिलीज जब होता है और वो रिलीज स्पेशली जब अगर लोगों को बहुत अच्छा लगे तो बहुत अमेजिंग फीलिंग आती है अंदर से, क्योंकि इसके लिए ऐसा था कि पाताल लोक का जब ट्रेलर आया था या पोस्टर आया था तब हमें ये पता था कि बहुत अच्छी टीम के साथ मैं काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छे Hmm. लोग जुड़े हुए हैं इससे, जो एक्टर्स हैं बाकी Yes. सारे, जयदीप भाई हो गए, अभिषेक सर हो गए, सारे लोग, हाय यश। तो इन सब लोगों के साथ ये पता था कि हाँ कुछ बहुत अच्छा बनेगा, मतलब कि बहुत ही लोग क्रिटिकली थोड़ा अक्लेम्ड होगा, लोग थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे। ऐसा नहीं मालूम था कैसा बूम हो जाएगा। तो The ये series was amazing. Like the first time I heard that Patalok करके कुछ आ रहा है, I thought it is a horror series or something because नाम कुछ ऐसा था. But या when I watched it, I was like purely blown away. It was really nice. इसका एक्चुअली इसका जो पहला जो जो सेकंड इसका जो प्रोमो निकला था, वो प्रोमो थोड़ा ना ऐसा थोड़ा एनिमेटेड था वो। तो Hmm. और फिर दूसरा नाम है इसका पाताल लोक, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि ये हॉरर फिल्म है क्या, बिकॉज और अनुष्का शर्मा ने इससे लास्ट जो फिल्म प्रोड्यूस की थी वो एक हॉरर फिल्म थी, परी। Yes, yes.
तो बहुत सारे लोगों ने ये मुझे मैसेजेस किए कि ये हॉरर फिल्म है क्या, ये क्या है, बताओ क्या है, कुछ टाइम ट्रैवल है क्या, या फिर कुछ और है, क्या चीज है। तो बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। मैंने कहा भाई तुम वेट कर लो थोड़ा सा, जब आएगा तब देख लेना। तो जब आया है तो लोगों ने मुझे लगता है कि एक्सपेक्ट कुछ और किया था, और कुछ और उनको जब नया कुछ और सरप्राइजिंग निकल गया, देखने को करेक्ट। मिला। हाँ, तो करेक्ट, वो आई हैड द ये सेम डिस्कशन इन माय फ्रेंड सर्कल इज वेल, कि उन लोगों ने सोचा था ओके कि ये कुछ और होगा, बट निकला कुछ और। जी एंड इट ओके। वाज प्योरली रियली गुड। सो टेल मी वन थिंग दैट, और इन व्हाट एज डिड यू कम टू इन दिस इंडस्ट्री? कब आपने सोचा कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में आना है? क्या यार आपका शुरू से ये ड्रीम था दैट यू वांट टू मेक इट इनटू अ फिल्म इंडस्ट्री, और व्हाट? नहीं यार, मैं बॉम्बे आने का मैंने पहली बार सोचा था। मैंने 2009 एंड में मैंने सोचा था कि अब मुझे बॉम्बे जाना है। हाउ लेकिन हाँ, ये है ओल्ड कि वर यू दैट टाइम? राइट नाउ आई एम 27। 2020 में नहीं, मैं 27 था, तो 2000 कितना था मैं, कितना हो 2020 गया से ये, भी 2000, 10 साल 2009, कम कर 11 लो, साल हो गए, 17। 10 साल, हाँ। हाँ, 17 साल 18 से, साल, ओके। 18 साल 18 का था मैं। साल, हाँ, मैं क्योंकि हाँ। मैं 11th क्लास मैंने पास किया था और मैं बॉम्बे चला गया था। हम्म। मैंने 12th क्लास बाद में किया, मतलब बॉम्बे जाने के बाद मैंने 12th क्लास किया मेरा। ओके। तो ये था कि बॉम्बे जाने का जो ख्याल था वो पहली बार मैं 2009 एंड में आया मेरे दिमाग में, मुझे जाना है। लेकिन हाँ, ये कि एक्टिंग से जो मेरा जुड़ाव था, एक्टिंग के साथ जुड़ने का, वो एक ओके। ये बाद में कर लेना ना, ये बाद में कर लेना, इसको बंद कर दो, सॉरी। या सो एक्टिंग से मेरा सबसे पहला जो जुड़ाव था वो इस तरीके से था कि स्कूल के अंदर जो छोटे छोटे जो नाटक होते हैं ना एनुअल फंक्शंस पे, हम्म। वो मैंने करना हम्म। शुरू किए थे। तो तब से मैं ओके। ये सारा स्कूल के नाटक और थोड़ा कुछ एक स्टैंड अप कॉमेडी शो आया था, द ग्रेट इवनिंग आफ्टर चैलेंज, उससे थोड़ा ओके। मैं इंस्पायर हुआ। तो वो शो था पहला शो जो कि मेरे लिए थोड़ा नया था, कि एक बंदा स्टेज पर अकेला आता है, एक माइक है उसके पास, नो कॉस्ट्यूम, नो मेकअप, नथिंग, जस्ट वो हम्म। आता है बस और आपको पूरी पिक्चर दिखा देता है और हंसा ओके। रहा है वो लोगों को। और मुझे लगता है कि कॉमेडी जॉनर सबसे टफ जॉनर है पूरी, मतलब जितना भी तरीके की जो एंड यू चीजें। डू अमेजिंग कॉमेडी, बाय द वे। लाइक थैंक यू यू, आर ये सो बहुत सारे लोगों को नेचुरल। नहीं पता है, बहुत यू सारे वेरी लोगों को नहीं नेचुरल पता विद ये। इट। थैंक नहीं, यू। एक्चुअली आपने मुझे जब बताया तभी मुझे पता चला कि आप कॉमेडी करते हो, और फिर मैंने आई सर्च्ड यू ऑन यूट्यूब एंड देन आई सॉ योर शॉर्ट फिल्म दैट वैकेंसी, एंड या इट वाज रियली नाइस, लाइक रियली नाइस। थैंक यू, थैंक यू। तो यार वैसा कुछ ओके। था, मतलब 2010 में मैं गया था। जो आपका सवाल था उसका हम्म। जवाब, मतलब छोटा सा जवाब, ये 2010 में छोटा मैं सा गया था। जवाब, ओके। ओके, सो मतलब आपने आपकी स्टडीज कंप्लीट करी ही नहीं, यू जस्ट जम्प्ड इनटू दिस? नहीं 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 यार, इससे ये अगर मैं बोलूंगा ना तो बहुत खराब, बहुत गलत मैसेज जाता है लोगों तक। फिर लोग क्या करते हैं ना, अरे देखो उसने तो पढ़ाई ही नहीं की, हम भी नहीं करेंगे, वैसा नहीं है। मैं एक्चुअली जब मैं 2010 में बम्बई गया था पहली बार, तो उस वक्त भी मुझे बहुत हम्म। ज्यादा जल्दी थी अंदर जाने की। और मैं थोड़ा ओके। बचपन में थोड़ा थोड़ा रिबेलियस रहा हूँ मैं, कि मुझे ये चीज करनी है तो मुझे करनी है। तो हाँ। उस वक्त थोड़ी सी सिचुएशन अलग थी, तो मैं चला गया बॉम्बे। एक डेढ़ साल ऑलमोस्ट मैं बॉम्बे में रहा। मैंने अलग अलग काफी सारे जॉब्स की, क्योंकि मेरे पास पढ़ाई नहीं थी। अब यहाँ पे आपका ओके। आके पता लगता है कि पढ़ाई नहीं करने का क्या नुकसान है। हम्म। क्योंकि मैं जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करता था, मिनिमम लोग ग्रेजुएशन मांगते हैं, या एटलीस्ट छोटा जॉब है तो 12th क्लास तो चाहिए ही चाहिए। मेरे पास वो भी नहीं एग्जैक्टली। था। तो हाँ। और मैं पढ़ाई में हमेशा ना मैं नीचे से टॉपर रहा हूँ। तो जब ओके। फिर मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, मैं प्राइवेट पढ़ लेता हूँ, प्राइवेट इसका फॉर्म भर देता हूँ। तो मेरे जो दोस्त थे जो मुझे बहुत ज्यादा क्लोजली जानते थे, उन्होंने कहा भाई प्राइवेट मतलब तू रेगुलर जाके जब तू पास नहीं कर सकता, तो प्राइवेट तो तेरे बस का है ही नहीं, तू मत कर, ओके। तू एक साल और खराब करेगा। तू एक काम कर, ओपन एक होता है ओपन से भी आप एग्जाम दे सकते हैं। ओपन से ये होता है कि बेसिकली आपने एक साल में आपने सारे एग्जाम देने पांचों सब्जेक्ट के, उसमें फॉर एग्जाम्पल आपने 2 पास कर लिए और आप हम्म। 3 में फेल हो गए, तो वो आपको नेक्स्ट ईयर सिर्फ 3 का ही एग्जाम देना पड़ेगा। टीम का एग्जाम देना पड़ेगा, ऐसा हाँ। आपको आई 3 नो। चांस मिलते हैं। तो और हम्म। उसमें मुझे अब वो जब फॉर्म भरने के लिए गया वापस आके, तो मैंने कहा यार इसमें सब्जेक्ट क्या लूँ मैं। तो उर्दू हम्म। मुझे आती थी, बचपन से मैं उर्दू में पढ़ता था बहुत, तो एक सब्जेक्ट उर्दू ले हाँ। लिया। मैंने कहा अब दूसरा क्या लूँ, तो दूसरा फिर मेरे दोस्त ने कहा कि काम कर सोशियोलॉजी ले ले। इसमें मतलब बहुत ही नॉर्मल से जवाब होते हैं कि मतलब अच्छा क्या है बुरा क्या है समाज में, जो हम रात दिन अच्छा। बातें करते हैं। ये दूसरा हाँ। सब्जेक्ट ले लिया मैं। अब मैंने कहा भाई तीसरा सब्जेक्ट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट और टफ होता है, जो कि आपको इकोनॉमिक्स लेनी है या फिर आपको पॉलिटिकल साइंस लेनी, कुछ ना कुछ आपको एक वैसा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा जिसमें आपको पढ़ना है। हम्म। तो मैं वहां पे मुझे ऑप्शन दिखा होम साइंस का।
तो मैंने ओके। थर्ड ऑप्शन लिया होम साइंस का। और मैं जब एग्जाम, तो उसमें वाह, मुझे मुझे गाय वो भी इसलिए टेकिंग अ लिया था, होम साइंस इज न्यू टू वो मी। भी वो भी इसीलिए लिया था क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम होता था। तो अच्छा। प्रैक्टिकल में क्या होता है ना कि आउट ऑफ 130 नंबर्स का आपका वो होता है, प्रैक्टिकल होता है, और आपको पास होने के ओके। लिए कितना 36 आपको लाने पड़ते हैं। तो हाँ उसमें वो था। तो उसमें प्रैक्टिकल भी ऐसे होते, आप उसमें आपको प्रैक्टिकल भी कैसे दिए जाते हैं, सूजी का हलवा बना दो। हाँ हाँ। सीरियसली, कि अगर कपड़े पे अगर चटनी का दाग लग गया तो वो कैसे निकलेगा, वो करके दिखाओ। तो ये सारा प्रैक्टिकल था, वो भी मैंने खुद नहीं किया, अपनी बहन से करवाया मैंने। तो वो ऐसे ऐसे करके, मतलब जैसे जैसे करके गिरते पड़ते मैंने 12th क्लास पास की। और फिर ओके। तब तक मैं डेढ़ डेढ़ साल में बॉम्बे रहने के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, अब अब थोड़ा ट्रेनिंग जरूरी है। वो 1.5 साल मेरा पूरा जो है वो खराब तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक्टिंग में हम्म। मुझे उस वक्त काम इसलिए नहीं मिला क्योंकि मेरे पास ट्रेनिंग नहीं थी। तो ओके। फिर दोबारा से 2011 मिड में मैं वापस जयपुर आया, जयपुर शिफ्ट हुआ हम्म। क्योंकि मेरे होम टाउन से करीब है। और फिर ओके। यहाँ मैंने थिएटर शुरू किया फिर मैंने। आपका होम टाउन कहाँ का है? मेरा होम टाउन ये, इसका नाम है निम्बाहेड़ा नाम है। और ये राजस्थान में? बहुत छोटा सा ये टाउन है, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पड़ता है ये। हाँ। ओके। जी जी जी। मतलब ये ओके। सो बेसिकली इसकी खासियत है कि ये राजस्थान और एमपी की बॉर्डर है बिल्कुल। बॉर्डर पे, हाँ। तो हमारा हाँ, कल्चर थोड़ा मैं बहुत एमपी का है, मैं थोड़ा एमपी राजस्थान से भी है। हूँ, मैं एमपी से हूँ। शादी मेरी ओके गुजरात ओके में हुई है, लेकिन मैं हूँ एमपी से। ओके ओके ओके। ग्रेट। सो जी मुझे एक बात बताइए कि जब आपने डिसाइड किया कि आपको 12th के बाद बॉम्बे आना है फॉर योर इन करियर, फिल्म इंडस्ट्री में आना है, तो आपका, बिकॉज यू हेलिंग फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली, जी। आपकी फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया इस बात पे, आपके इस डिसीजन पे? हाउ वाज योर फैमिलीज रिएक्शन कि मतलब 12th कंप्लीट करते ही जाना है? यार नहीं, एक्चुअली मैंने तो 12th भी कंप्लीट नहीं किया था, मैंने तो मतलब 11th कंप्लीट करके मैं चला गया था। बट मेरे साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये रहा है कि मेरी थ्रू आउट जर्नी जितनी भी अभी तक रही है, मेरा सबसे हम्म। बड़ा जो सपोर्ट सिस्टम रहा है वो दो लोग मेरे साथ बहुत रहा है, मेरी अम्मी और मेरा जो बड़े भाई हैं। तो ओके। मेरे घर में ऑफकोर्स शुरुआत में जब आप बोलोगे ना, अगर अभी आप कल को अगर बोलोगे मुझे नासा जाना है, तो घर वाले एक बार तो नई चीज सुन के तो एक बार तो थोड़ा सक पकाएंगे ना वो, कि ये क्या है, मतलब हाँ, यू सही आर है। नॉट फिट फॉर दैट। तो वैसा ही हम्म। थोड़ा एक रिएक्शन था शुरुआत में, फिर लेकिन मैंने कन्विंस करने की कोशिश की। और घर वालों के साथ बहुत सीधा था यार, हमारे सबके ना माँ बाप बहुत भोले भाले से होते हैं, उनको रिजल्ट चाहिए बस। आप उनको इतना अच्छा, सा रिजल्ट दो, वो इतने खुश हो जाते हैं। वो इतना खुश हो जाते, राइट? तो हम्म। बस वो थोड़ा सा शुरुआती दौर में और मैंने बहुत सीधा सा ही बोला था कि मुझे आप थोड़ा टाइम दे दो, 1-1.5 साल का टाइम दे दो। हम्म। उसके बाद फिर मैं जो भी होगा मैं देख लूंगा, अगर नहीं होता तो फिर मैं जो भी करना हो आगे चल के वो कर लूंगा। तो ओके। मेरा लेकिन बहुत बहुत ज्यादा जो थ्रू आउट सपोर्ट रहा है मेरी मेरी अम्मी का और मेरे भाई का, उन लोगों की वजह हम्म। से एक्चुअली मैं जा पाया और इतना सब कुछ कर पाया इतने सालों तक। तो बहुत ओके, सपोर्टिव है यार ग्रेट। फैमिली। That's great. Family ka support is really important, रियली especially इम्पोर्टेंट या। in this career where there is a lot of struggle, and I can see that you have struggle has been stretched to 10 years, like 2009 to 2020. So या how did you managed initially coming from a normal middle class family, just 11th pass out, no job, या no work. How did you या manage in Bombay initially? क्या किया यार आपने? तो बॉम्बे में जब जब पहली बार गया था तो ये ना बहुत ही एक होता है ना कि आप जब किसी एक नई जगह पे आप जाते हो तो आपके दिमाग में एक इमेज बनी हुई होती है कि वो इसी तरीके की जगह होगी। लाइक मेरा जो हम्म। शहर है यहाँ पे ये मोहल्लों में बटा हुआ अलग अलग ना, कॉलोनीज में हम्म। बटा हुआ मोहल्ला होता है। तो हम्म। हमें भी ऐसे ही लगता था कि अंधेरी भी एक मोहल्ला होगा, उसके पास में बोरीवली एक मोहल्ला होगा, उसके पास ये होगा, यही आपके दिमाग में इमेजेस होती हैं। तो इसी हम्म। तरीके का था। ओके। लिटरली मैं बता रहा हूँ, पहली बार जब दो बैग वैग लेके एकदम जब उतरा था मैं पहली बार बोरीवली स्टेशन पे, ऐसे मैंने नजर घुमाई तो जहां तक मेरी नजर खत्म हो रही वहां तक, लेकिन स्टेशन खत्म नहीं हो रहा। हाँ, और मैं डर गया सीरियसली, क्योंकि मेरी ट्रेन कुछ सुबह 6:30 पौने 7 बजे मैं उतरा था वहां पे। और मैं देख हम्म। रहा हूँ 7:30 बजे ऑलमोस्ट मेरे गांव की पूरी पॉपुलेशन, उतनी उतनी पब्लिक सिर्फ स्टेशन पे दिख रही है मुझे। और मैं ओ। एकदम, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, सुबह सुबह 7 बजे इतनी भीड़, इतनी पब्लिक। तो उस वक्त हालांकि मैं जिसके पास मैं एक दोस्त के पास में गया था घर के लिए पहली बार, तो वहां पे नहीं रह पाया मैं किसी वजह से। पहले ही दिन हम्म। मना हो गई वहां से कि आप नहीं रह मना हो सकते गए, यहाँ पे। नहीं रह सकते, हाँ। और तो अब जब रहने का नहीं था तो मैं ये सोच के गया था कि रहूंगा 7-8 दिन, फिर जॉब वॉब ढूंढने का देखा जाएगा, आगे का जो भी होगा। तो जब रहने का हम्म। आसरा नहीं था पहली बार में, तो एक दो लोगों को और मैंने फोन वोन किए करना शुरू किए, जो बम्बई वाले लोगों को मैं जानता था। किसी से बात नहीं हो पाई क्योंकि वो सुबह का टाइम था जल्दी का, 8-9 बजे तक किसी से फोन नहीं लगा पाया। फिर मेरा एक फ्रेंड था अभिषेक, वही मेरी फ्रेंड का फ्रेंड था, मैंने उसको फोन किया, वो बाय चांस उसने फोन उठा लिया।
तो उसने फिर Okay. मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसा ऐसा मसला है मेरे साथ, तो मुझे थोड़ा रहने का प्रॉब्लम है। तो शुरू के 5 दिन उन्होंने मुझे रखा, और मैं सीरियसली उनको इतना बड़ा क्रेडिट देता हूँ अपनी जर्नी में, क्योंकि वो जो शुरू के 5 दिन थे, अगर उस वक्त अगर मुझे रहने का जरिया नहीं मिलता, शायद मैं बॉम्बे से वापस आ जाता। वो पहला बंदा था जिसने वहां से मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। होता है ना आपकी Okay. जर्नी में बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा सा, जिनको हाँ, कई और बार कुछ आप लोगों का यू नो कंट्रीब्यूशन बहुत आप इम्पोर्टेंट होता है। आप उसको छोटा समझ के आप उसको एक्नॉलेज करना भूल जाते हो, लेकिन आपकी करेक्ट, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी आपको आपको समझ में आता है बाद में। समझ में आता है बाद तो में। करेक्ट। तो या बैक टू द क्वेश्चन। तो उनका वहां से मैंने उनके घर पे रहना शुरू किया, और फिर जॉब ढूंढना जब शुरू किया, तो वहाँ अखबार में डेली मिड डे अखबार होता है बॉम्बे में, जो पूरा भरा होता है पूरा हम्म वैकेंसी से। हम्म। लेकिन हर जगह मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होती है, हर चीज में, चाहे वो कोई भी हम्म। जॉब हो। तो हम जॉब ढूंढने रोज जाते थे, तो मैं ऑफ कोर्स लोकल पकड़ के जाता था। तो लोकल पे ही स्टेशन पे ना बोर्ड लगे हुए थे वहाँ पे कि 5 स्टार होटल में जरूरत है, हम्म। 10th क्लास पास, 8th क्लास पास, और ये वो। मैंने उसको फोन किया, उसका सतीश नाम था उस बंदे का, उसने मुझे गोरेगांव बुलाया पहली दफा। अब ओके। फिर गोरेगांव पता लगा कि गोरेगांव ईस्ट में एक 5 स्टार होटल थी, वेस्टिन। तो हम्म वेस्टिन में बैंक्वेट में क्या होता है ना, बैंक्वेट में बहुत सारे तो होटल मैनेजमेंट जो किए हुए होते हैं वो लोग होते हैं वेटर्स, उनके अलावा हम्म। एक्स्ट्राज हायर करते हैं लोग डेली बेसिस पे, ओके ओके। कैजुअल। वो मुझे पहला जॉब मिला, वो जॉब मैंने किया ऑलमोस्ट 8 महीना। अब ओ। फिर उसका टाइमिंग क्योंकि इतना अलग था, वो जॉब शाम को शुरू होती 4 बजे, तो और आपका हम्म। मेन ऑडिशन वगैरह का टाइम भी आपको यही है सारा। तो 4 बजे शुरू होती है, रात को 3 बजे वो खत्म होती है। तो मैं और कुछ कर नहीं पाता। फिर मैंने थोड़ा फिर मैंने ट्राई किया, और इधर उधर थोड़ा एक दो दोस्त वोस्त बने, मैंने कहा मुझे जॉब चेंज करना है। तो फिर किसी के थ्रू मैंने इंटरव्यू दिया शॉपर स्टॉप मालाड में, वहां पे फिर मैंने अच्छा। जॉब किया, 5-6 महीना हम्म। वहां पे जॉब किया। और ये करते करते पूरा जो 1.5 साल था, मतलब 2010 और 11, सॉरी 11 पूरा और 12 आधा, तो उस दौरान इस 1.5 साल में फिर मुझे समझ में आया कि यार ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मुझे जो काम नहीं मिल रहा है उसकी गलती किसी और की नहीं, गलती मेरी है कि मुझे हम्म। एक्टिंग नहीं आती, मुझे एक्टिंग आती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक्टिंग आती है, लेकिन मुझे एक्चुअली नहीं आती। अपने अंदर ओके। होता ना, आपको आपकी कमी आप कभी नहीं देख पाते। वो रियलाइज होने में 1.5 साल करेक्ट। लग गया। और वो जब रियलाइज हुआ मुझे अंदर से कि अब सीखना जरूरी है, तो फिर मैं बॉम्बे से फिर दोबारा मैं जयपुर शिफ्ट हुआ। ओके तो शुरुआती दौर ऐसा था। ओके। तो तो आपने मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने आपके करियर स्टार्ट हुआ उसके पहले आप ऐसे शादियों में एज अ स्टैंड अप कॉमेडी या कहीं पे ऐसे डांस करना, आपने ऐसा भी सब कुछ किया है। तो हाउ डू यू जी फील अबाउट वहां से आज आपकी जो ये जर्नी है, हाउ डू यू फील जी अबाउट इट, लाइक यू हैव मेड इट टू दैट पॉइंट टू हियर यार, people are queuing to have an interview with you. So how do you feel about it? ये मतलब ऑफकोर्स पता तो होता है आपको कि जब आप मीडिया में आप जब काम करने लग जाते हो, एक्चुअली अगर दो चीजें हैं, ये किसी भी आप एक्टर से अगर पूछोगे ना, ये मैं मॉडेस्टी में नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत जेन्युइन बात है कि आप अगर किसी भी एक्टर से पूछोगे तो ये दो तरीके की चीजें होती हैं। एक तो होता है कि पब्लिक जो आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, लोगों हम्म आपको हर जगह अटेंशन देते हैं, ये आपको तब मिलता है जब आप मीडिया में फेमस हो जाते हो। लेकिन जो एक्टर का हाँ। जो रियल जो अंदर का जो सेटिस्फैक्शन जो आप बात करोगे, तो वो आपको तभी मिलता है जब आप थिएटर करते हो। जब मैं थिएटर करता था, मैंने ऑलमोस्ट 6 साल में जयपुर में थिएटर किया। और अलग अलग नाटक जब हम करते तो उसका जो प्रोसेस जितना मैंने एंजॉय किया आज तक, डे वन से लेकर के कि अगर हम लोग एक नाटक करते थे 3 टप्पर, तो तीन हम्म टप्पर हमारे डायरेक्टर थे साबिर खान सर, उनकी एक आदत थी, वो एकदम रियलिस्टिक प्ले बनाते थे, और ये एक चौल की कहानी थी पूरी। तो डे वन पे उन्होंने बुलाया। जब होता था ये था कि जब भी कोई नया नाटक हो रहा है, वो बुलाते थे कि एक स्क्रिप्ट देते थे और कहते थे सब अपनी अपनी जेरोक्स करा के ले आओ। ओके। हम्म नेक्स्ट डे 5 बजे बुलाते थे और कहते थे कि रैंडमली बोलते थे कि तुम ये पढ़ो, तुम ये पढ़ो, तुम ये कैरेक्टर पढ़ो। तो हम सबने पढ़ा, और मुझे अच्छे से याद है, मैं ग्रे कलर की टी शर्ट और ऐसा व्हाइट कलर का कुछ ऐसा लाइट कलर का कुछ एक मैंने लोअर पहना हुआ था। तो वहां पे ऐसे उनकी कास्टिंग करने का तरीका थोड़ा अलग था कि तुम ये वाला पढ़ो, तुम ये पढ़ो, तुम फीता बाबू पढ़ो, तुम इसका पढ़ो, तुम इसका पढ़ो, अलग अलग कैरेक्टर बता दिए, हम सबने पढ़ा। और उन्होंने फिर शर्त रखी कि ये जो 15 लोग हैं, कल से इनमें से कोई नहाएगा नहीं, अगले 30 दिन आप शेव नहीं कर सकते, आप ब्रश नहीं कर सकते, आपको उंगली से करना है। वो ओह भी ओके। हाँ, आप टूथपेस्ट भी यूज नहीं कर सकते, आपको कोयला जो होता है कोयले को चबाना है, या उसका कोयले। पाउडर आप ओह बनाओ और उससे आप अच्छा। करोगे। शेव नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ओके। क्योंकि वो जो पूरी बस्ती वाला का जो फील है ना, कि फील जब तक आपको अपने अंदर की स्मेल नहीं आएगी, आपको बस्ती हम्म वालों का दर्द नहीं समझ सकते, आपको उनका दर्द समझ में नहीं आएगा। उनकी आदत थी।
तो उस तरीके के जो प्रोसेस होते थे जब कैरेक्टर को बनाने में, वो मैं बम्बई में बड़ा मिस करता हूँ अभी। ओके, तो ये तो क्या एक जब तरफ, आप ओके, बोलिए बोलिए। तो एक तरफ जैसे कि ये सारा जो प्रोसीजर है जिसकी आप बात कर रही हैं कि क्या फर्क आपको महसूस होता है, फर्क ये आ जाता है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग सब आपके पास आते हैं कि आइए आप हमारे साथ इंटरव्यू करिए, या फिर कुछ ने कहा कि फोटो खिंचा लीजिए, या फिर कुछ भी किसी भी तरीके से कोई मुबारकबाद दे रहा है आपको मैसेज पे। अच्छी तो ये सारी चीजें लगती है, लेकिन मुझे लगता है ना धीरे धीरे आप जब इस एक्टिंग में जब आप बिजी होने लग जाते हो, तो आपके पास फिर टाइम नहीं बचता वो सारी चीजें करने का जो आप प्रिपरेशंस करने का जो टाइम बाकी नहीं में जो मिलता, आप, हाँ, हाँ। जो आप जिस तरीके का ओके, काम आप पसंद करते थे काम करना, ये तो फर्क लगता जैसे है मुझे। अभी अभी जो रोल्स आपको मिलते हैं, जैसे जो पंचायत में आपको रोल मिला, एक ग्रूम का रोल था वो, फिर जैसे जो जी जमतारा में आपने जर्नलिस्ट का, जो मतलब बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड जर्नलिस्ट रहा हुआ रहता है, उसको उसका जी बॉस पूरे टाइम पीछे से हैमर करता ही रहता है कि यू आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कुछ न्यूज लेके आओ, न्यूज लेके आओ। तो ये जी। सारे जो कैरेक्टर्स आप निभाते हो, तो हाउ, मतलब आप उसकी पहले से कोई प्रिपरेशन करते हो? डू यू लाइक टेंड टू गो इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, और हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर इट? यार एक सबसे अच्छी चीज क्या हो रही है अभी हमारे साथ, मेरी एज के जो भी लोग हैं, कि ये इस वक्त अभी इंडस्ट्री का गोल्डन टाइम चल रहा है। हम्म। फ्रॉम 2012 से इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है अनुराग सर को, अनुराग कश्यप जो है, जब हम्म। से वो आए फिल्म इंडस्ट्री में, और उनके जैसे कुछ और 7-8 डायरेक्टर्स आए, लेकिन मैं उनका इसलिए मानता हूँ क्योंकि वो मेरे सबसे ज्यादा पसंदीदा डायरेक्टर है, उनके बड़े ओके। फेवरेट है मेरे। तो उन्होंने जिस जिस तरीके की फिल्में बनाई, ब्लैक फ्राइडे और गैंग्स ऑफ वासेपुर या डेव डी, बहुत ही एक तो हम्म। रियलिस्टिक सिनेमा आ गया। तो रियलिस्टिक सिनेमा आने से पहली चीज तो ये कि मेरे जैसे लोगों के लिए दरवाजे खुल गए बहुत सारे, है ना। पहले हम्म। उतना ऑडियंस में एक्सेप्टेंस नहीं थी, प्लस हाँ। फिर वही ओटीटी के फिर दरवाजे खुले बहुत सारे, की मिर्जापुर जैसी सीरीज आई जिसका एक छोटा सा पार्ट हम्म। बनने का मौका मुझे मिला। हाँ, तो बाबर, सेक्रेट राइट। सेक्रेट सेक्रेट गेम जैसी सीरीज बनाई अनुराग सर ने। तो वहां से क्या हम्म। हुआ कि बहुत ज्यादा जब रियलिस्टिक जब चीजें बनने लगी, बहुत सारे हमारे जैसे जब लोग आने लगे जो थिएटर से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों ने फिर नई चीज शुरू करी, वर्कशॉप होने लगी फिर एक्टर्स की। हर शूट से पहले आजकल वर्कशॉप होती है। तो वो अच्छा। हालांकि वो जितना लंबा प्रोसीजर थिएटर का होता है, महीना 1.5 महीना 2 महीना, उतना लंबा वो नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट 9, 8, 9, 10 दिन एटलीस्ट कम से कम मिल जाते हैं आपको करने के। तो वो थोड़ा बहुत करने जितना के आप लिए कर सकते हो, बाकी आपका आपका होमवर्क आप कितना कर लेते हो, तो हो उस जाता पर है। डिपेंड करता है। तो आपका जी फर्स्ट जी। प्रोजेक्ट कौन सा था, जो सबसे पहला एज इन प्रोजेक्ट आपको मिला बॉम्बे आके, एज एन एक्टर? बॉम्बे आ गया, ओके। हाँ। एक्चुअली बॉम्बे आने से पहले जयपुर में मैंने 2 टीवी सीरियल मैंने किए थे, दोनों एपिसोडिक थे वो। एक था हमारा रीजनल चैनल था जी मरुधरा, उसके लिए मैं हम्म। करता था कलेक्टर साहब, एक सीरियल आता, इट्स लाइक सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल, वो हम्म। किया। फिर वो बंद हुआ तो उसी प्रोडक्शन हाउस ने फिर सोनी टीवी के साथ क्राइम पेट्रोल बनाना शुरू किया वहीं आके। तो वो उस वक्त जब आया था तो हमारे लिए तो ये था कि एक्सपोजर मिलेगा नया। और जब क्राइम पेट्रोल वगैरह ये लोग आए, मैं पागल हो गया था कि सोनी टीवी, यू नो हाँ। सोनी टीवी पे आने का मौका मिल रहा है और ये। और तो वो पहली बार मुझे याद है अच्छे से, जब पहला मिला था तो उन्होंने कहा था कि वो जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उनका कॉल आया कि सुनो हमने तुम्हारा ऑडिशन देखा, ऑडिशन बहुत ज्यादा अच्छा तो हमें नहीं लगा, लेकिन हम फिर भी तुम्हें एक मौका दे रहे हैं। मैंने कहा भाई ऑडिशन नहीं अच्छा लगा। बेसिकली क्या होता है ना, वो इस तरीके से पहले बोल देते हैं कि बंदा पैसे ना मांग दे, हम्म। उसको पहले ही हम वैसा कर दें कि भाई हम तेरे को मतलब तेरे को दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, जिसमें खुश हो जाओ तुम। तो पहले काम ओके। के मुझे याद है, मुझे 500 रुपये मिले थे पहले रोल के। ओ 500 रुपये वाओ। उन्होंने एक दिन के दिए थे। तो वहां से शुरू हुआ। बम्बई आने के बाद मेरा पहला काम था वो 2011 में। एक्चुअली मैं जब पहली बार जब बम्बई आया था तो मैंने अग्निपथ और ये जो फिल्म थी, मैं क्राउड रोड में गया हूँ 1-2 बार, लेकिन ओके। पहला काम, आप जो बॉम्बे का पहला काम पूछ रहे हैं, तो वो मेरा टॉयलेट एक प्रेम कथा, अक्षय सर की ओ। फिल्म थी हाँ। जी। उसमें एक सीन है जब अक्षय सर बाहर आते हैं कोर्ट से, उनका केस चल रहा है हाँ। उनकी बीवी के साथ, इंटरवल पॉइंट, और बहुत सारे रिपोर्टर टूट पड़ते हैं उनके ऊपर। उनमें से एक हम्म। रिपोर्टर मैं था, और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा क्लोजअप आ गया वहां पे उस फिल्म ओ, में। मैं फिर से तो वो मेरा, देखूंगी। देख लीजिए, वो मेरा पहला सही काम है। था। तो कैसा लगा था आपको अक्षय कुमार के साथ प्रेम में आना आना मतलब इट्स बिग थिंग, सो हाउ डिड यू फील अबाउट इट? यार उस दिन शायद मेरा नसीब थोड़ा सा खराब था, क्योंकि ऐसा हुआ कि ऐसे पूरा भीड़ था, कोर्ट वाला सीन है, और हम सबको ना ऐसे एक झुंड बना के ऐसे खड़ा किया हुआ था, और इतना दूर पे ना, मतलब थोड़ा सीन की थोड़ी सी वो, हाय अनुराग, हाय ऋतु, वो इस तरीके की थी कि इधर गेट से भूमि और उनके फादर अनुपम सर और ये लोग सब आएंगे, और सारे रिपोर्टर हम्म। उनके पास भागते हैं, और पीछे से एक बंदा चिल्लाएगा केशव, और इधर देखते हो तो अक्षय सर के पास सबको भागना है। और मैं इधर मुड़ के, सब उधर भाग रहे हैं कि भूमि पेटने के इधर से आने वाली है। और मैंने ऐसे करके देखा था, भीड़ के बीच में ना पिंक कलर की शर्ट पहन के एक बंदा खड़ा हुआ है,
अक्षय कुमार। पहली बार अक्षय कुमार को मतलब अक्षय कुमार को जिंदा देख रहा हूँ पहली बार मैं सामने से। और मेरे थोड़े से मैं थोड़ा सा फिल्मी रहा हूँ बचपन से बहुत ज्यादा, और वो अपने वन ऑफ द फेवरेट एक्टर में से रहे, तो मैं उनको देख कर थोड़ा सा अजीब गरीब सा हो गया। मैंने कहा मैं काम करता हूँ, ये सब लोग भूमि पेडनेकर के पास जाएंगे, मैं सबसे पीछे रहता हूँ, ताकि जब Okay. घूम के भागेंगे तो मैं सबसे आगे जाऊंगा। हम्म तो जब सेम किया मैंने, मैं गया ही नहीं उधर भूमि पेडनेकर वाले सीन में, मैं सबसे पीछे खड़ा रहा। और जैसे उन्होंने बोला हाँ। केशव, तो मैं भाग के और सबसे पहले अक्षय सर के सामने। अब वो ऐसा 2 शॉट था वो, ठीक है तो वो ऐसा 2 शॉट था, तो इधर कैमरे वाला है और इधर अक्षय सर खड़े हुए, और उसको क्यों देना था कैमरे के नीचे बैठ के एक बंदे को। और मैं 2 बार ऐसे सवाल पूछने के चक्कर में 2 बार में मेरा शोल्डर कैमरे पे आ गया। तो जो चीफ एडिटर उसने बोला कि अरे ये बंदा कौन है, ये बार बार बीच में आ रहा है, ये बार बार बीच में आ रहा है। अक्षय कुमार ने बोला अरे कौन है देखो यार, अक्षय सर कौन है देखो एक बार। तो वो जो एडी तो ये होते हैं ना कि स्टार बुरा ना मान जाए, कुछ हो ना जाए, उसने ऐसे हाथ पकड़ा मेरा, उन्होंने हाथ पकड़ा और ऐसे बाहर ले लिया मुझे, तुम साइड आ जाओ। और मैंने पता नहीं क्या क्या सोच लिया, मुझे लगा कि करियर यहीं शुरू होने से पहले खत्म हो गया मेरा, ये लोग जाके बाहर सबको बोलेंगे कि आसिफ खान ने ये किया, आसिफ ने वो किया। मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि मुझे किसी का मेरा नाम भी नहीं पता किसी को, और मैं बहुत ही परेशान सा हो गया। फिर मैंने आके अपने दोस्तों को बताया कि यार आज ऐसा हो गया यार, ये हो गया। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आगे। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था उनके साथ। ओह नाइस। फिर आप सेक्रेड गेम्स में आए, फिर आप पंचायत में आए, आप जमतारा में आए, तो ये सारे मिर्जापुर में आए, तो और लकीली मिर्जापुर और सेक्रेड गेम्स तो बहुत ज्यादा फेमस भी हुआ है। सो बीइंग अ पार्ट ऑफ सच प्रोजेक्ट्स और नाउ पाताल लोक, लाइक आपको ये सारी चीजें आप प्रोसेस कैसे करते हो? How do you feel कि मतलब you are a part of such big projects and they are doing so good, people are appreciating the whole work done by every member of the team, every actor. So how is it that you process the whole emotion of being into a very nice projects and then getting appreciations also from everybody around, like from normal people to the directors and other important people from the industry? How do you feel about it and how do you take that? यार एक तो आपने बोला कि इतने बड़े बड़े आप प्रोजेक्ट का पार्ट हो, आप कैसा फील करते हो। सबसे पहली चीज तो ये कि कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले ये पता नहीं होता कि आगे चल के बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, है ना। मेरे कुछ प्रोजेक्ट है जो कि उतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं भी हैं जितने की कुछ मेरे प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। तो एक तो वो करने से पहले कभी पता नहीं होता। तो और आज से, और ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो आज से 2 साल पहले तक मैं उस कंडीशन में भी नहीं था कि मैं चूज कर पाऊँ कि मैं ये करूंगा ये नहीं करूंगा। उस वक्त ये था कि मुझे जो जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आती थी, जो मुझे अगर मुझे 2 चीजों में से एक चीज अगर अच्छी लगती थी कि या तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, मेरा कैरेक्टर उतना अच्छा नहीं है तो भी मैं कर लूंगा, या फिर प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है बट मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा तब भी मैं कर लूंगा। दोनों चीज अगर अच्छी नहीं होती थी और पैसे भी नहीं मिल रहे तब मैं मना कर देता था कि यहाँ जब कुछ नहीं मिल रहा तो क्यों अपना वक्त खराब करूं, वो मैं मना करता था। अदरवाइज मैं, लेकिन अब जाके वैसा वाला हुआ है कि 2-3 चीज आती हैं। कई बार डेट का प्रॉब्लम हो गया, या फिर कई बार कोई है ऐसा कि जिससे आपको किसी भी तरीके से फायदा नहीं हो रहा, तो आप कह सकते हो कि हाँ मैं ये वाला नहीं करना चाहता हूँ। बट जब अच्छा बन जाता है बहुत अच्छा, तो ऑफकोर्स जब इंडस्ट्री के अंदर के जो लोग होते हैं वो तो वो वाला भी काम देख के बहुत अप्रिशिएट करते हैं जो कि बाहर बहुत ज्यादा हिट नहीं भी है, या आपका काम अच्छा है। बहुत सारे दोस्तों उनसे बूस्ट अप मिलता रहता है, हमें अंदर से बूस्ट मिलता रहता है क्या नहीं, अच्छा करते रहो। तो थोड़ा वैसा सा है। ओके। तो पंचायत में जो आपका रोल था ग्रूम का, लाइक वो बहुत ही आपकी जो पर्सनालिटी, अभी तक मैं आपसे जो इतने दिनों से बात कर रही हूँ और जो समझ पा रही हूँ आपको, उस हिसाब से बहुत ही ऑपोजिट सा, मतलब वो उस लड़की को बहुत ही क्वाइट और है ना बहुत ही डरा हुआ सहमा हुआ सा इस तरह का बताया। तो आपने कुछ उसके लिए प्रेपरेशन करी थी पहले से, और या इट वाज जस्ट इंस्टेंट कि आप गए और आपने शॉट दे दिया? यार पंचायत के दूल्हा की प्रिपरेशन तो बचपन की है। You have cried because that guy Jeetu called you asshole and everything. Yes. So it was like really funny to watch and you did it amazing. So कैसे आपने उसके लिए कुछ पहले से उसमें उस फील में आने के लिए कुछ पहले से प्रेपरेशन करी, या इट वाज जस्ट इंस्टेंट कि ये तो हो जाएगा टाइप? नहीं, एक्चुअली मैं आपको वही बता रहा हूँ कि दूल्हा की जो तैयारी थी वो मेरी बचपन की तैयारी थी, क्योंकि मैं जिस तरीके के शहर से मैं आता हूँ, मैंने बचपन से मैं देख रहा हूँ इस तरीके के लोगों को। आप अगर जो भी छोटे शहर में अगर आप कभी रही हैं, आपने देखा होगा जब शादी उसी वैसी ही शादी तो होती है कि लड़के ने टेंट्रम दिखा दिए। ये तो बहुत, चलो वहां पे पंचायत में दिखाया कि उसने अलग से रूम की डिमांड करी है, तो उसको पंचायत ऑफिस में मैंने बहुत बार देखा है कि दूल्हा कहता कि मैं ये वाली गाड़ी में नहीं जाऊंगा, मैं ऑल्टो में नहीं जाऊंगा, मेरे लिए वो मंगाओ।
इनोवा मंगाओ, या मेरे को इनोवा यहाँ की बिठा दी, मेरे मेरे रूम, हाँ सबके सबके रूम में पंखे लगे, मेरे रूम में कूलर लगवाओ, कूलर लगा दो, इसमें हाँ पानी डलवाओ, पानी डलवा दो तो आप ओके ये भी करवाओ, शराब, तो वो वैसे वाले मैंने बहुत लोग देखे हैं जो कि जिंदगी में कभी जिनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का मौका मिलता नहीं है, और हम्म वो एक दिन ऐसा होता है कि उस दिन के राजा होते हैं वो। हाँ तो और मेरे दिमाग में जो चंदन, जो हमारे राइटर थे, उन्होंने मुझे ब्रीफ यही किया था कि आसिफ ये बहुत ही ऐसे ऐसे जब आप कैरेक्टर आप देखते हो ना, तो ऑफ कोर्स किसी भी सीन में, जब क्योंकि आप मीडिया देख रहे हैं हम लोग, है ना, अगर आप वेब कंटेंट देख रहे हो, एक कैरेक्टर पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ये तो चलता है ना, दो कैरेक्टर है, लेकिन गांव के जो लोग हैं उनमें नेगेटिव भी नेगेटिव नहीं होता, उसमें भी एक भोलापन, एक मासूमियत है अपनी, एक इनोसेंस उसका अपना है। तो वो मुझे कहा गया था कि वो आपको वो नहीं छोड़ना, वो उसके साथ में रहना ओके चाहिए। जब उसको गुस्सा भी आ रहा है कि यार मतलब दूल्हा को इस तरीके से कौन इंतजार करवाता है, अगर बिठाना था तो हमें प्लास्टिक का कुर्सी क्यों दिया हमें, अगर आपके पास ये अगर क्या कुर्सी है तो। बेइज्जती है यार हाँ, तो हाँ, उसमें भी उसमें एक 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 इनोसेंस रहता है उसका अपना। ये मेरा ब्रीफ था जब उस कैरेक्टर को प्ले कर रहा था मैं। ओके तो ओके इतनी थी तैयारी और है। ओ ओके और ये जो पाताल लोक में आपने कबीर एम का जो किरदार पूरा निभाया है, तो जी उसमें मतलब ड्यूरिंग जो अभी टाइम चल रहा है वो भी कुछ ऐसा ही चल रहा है जहाँ पे कास्टिज्म और ये सब बहुत ज्यादा है, तो आप क्या आपको कुछ हिचक थी बिफोर टेकिंग द रोल की, बिकॉज यू आर पोर्ट्रेइंग अगेन द कास्ट यू बिलोंग टू, और उससे रिलेटेड अभी बहुत टेंशन है कंट्री में, तो ऐसे रोल्स के आपको कुछ भी थोड़ा सोचने पे मजबूर करते हैं? वैसे तो मतलब नॉर्मली जो लोग देख रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जी everybody is similar, जी but जी still जी there are few people who pick up nonsense and talk about it, so जी। अरे do you यार think देखो, about it? हम एक तो क्या है ना कि ये तो दुनिया का दस्तूर है ये, कि हर चीज को कुछ लोग पसंद करेंगे, कुछ लोग नापसंद करेंगे। जो बड़े बूढ़े कह गए ना कि आप एक वक्त में सबको खुश नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर लीजिए, आप अपने गर्दन काट के रख दीजिए सामने, आप नहीं कर सकते। नहीं कर तो सकते। और मैं तो बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं मतलब मुझे कबीर करने का मौका मिला डे वन से, क्योंकि इस तरीके के कैरेक्टर मुझे लगता है मेरी काबिलियत मेरी काबिलियत से ज्यादा मुझे मिल रहा है। तो इस तरीके के लोग, और उसमें फिर सुदीप शर्मा और अविनाश अरुण प्रोसित रॉय जैसे अगर लोग वो के साथ आपको काम करने का मौका मिल रहा है, आपको जयदीप अहलावत आपको मिल रहे हैं, आपको अभिषेक बैनर्जी मिल रहे हैं, मुझे लगता है कोई बेवकूफ इंसान होगा ये जो बिल्कुल ही एकदम जो नहीं उसका दिमाग करेगा। कि वो जो नहीं करेगा, जो बुरा फील करेगा कि यार मैं करूं कि नहीं करूं, है ना। ये अगर मतलब ये उस वक्त की बात नहीं, अगर मेरे पास अगर ये जो जितना भी मेरा काम रिलीज हुआ है इसके बाद भी अगर मुझे कोई कबीर एम जैसा कैरेक्टर मिलता है, मैं खुशी खुशी करूंगा वो कैरेक्टर। खुशी खुशी। और इस ओके तरीके के कैरेक्टर जो होते हैं ये बहुत ही बहुत बहुत स्पेशल होता है, और बहुत करेज चाहिए होता है आपको इस तरीके की चीजें बनाने के लिए। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम वरना आस्किंग कि मतलब ऐसे रोल्स करने के लिए भी बहुत करेज चाहिए होता है। हाँ ऑफ कोर्स। तो ये मतलब मेरे दिमाग में झिझक कभी नहीं थी, बस हाँ ये था कि कुछ चीजें नहीं हुई थी इसके साथ, कुछ चीजें नहीं थी जो कि एज एन एक्टर मेरे 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 जहन में कभी उसका एक्सपीरियंस नहीं था मुझे उन सब चीजों का, कि ये जब सीधे एक इंसान जब, क्योंकि आप एज एन एक्टर कोई भी चीज जब आप प्ले कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल की मेरी बहन की शादी का अगर सीन है तो मैं उसको क्या पेन फील कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे अपनी जाती जिंदगी से मुझे कोई एक एग्जाम्पल उठाना पड़ेगा। तो वही सेम चीज ये कि कबीर एम की जिंदगी में जो जो चीजें थी वो मेरे साथ तो हुई नहीं कभी, तो वो कैसे करना है, कभी हो भी ना। वो प्रोसेस एक्चुअली जीने के लिए, वो प्रोसेस बनाने के लिए, उसमें थोड़ा सा मुझे झिझक थी दिमाग में, जो मैं कर पाऊंगा कि नहीं, उतनी ऑनेस्टी के साथ मैं परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं, या फिर ये कि पहली बार मुझे न्यूड सीन करना है वो मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैं आई वाज कमिंग टू दैट ओनली। वो सीन आपने कैसे किया, मतलब आपके साथ इतने क्रू मेंबर्स होते हैं और फर्स्ट टाइम होगा, आई थिंक आपका ये फर्स्ट टाइम था दैट यू गेव अ शॉट लाइक दिस, तो जी हाउ कंफर्टेबल वर यू, या कितना डिफिकल्ट था आपके लिए इस चीज को मतलब अंदर जहन में उतारना और बिल्कुल ऐसा पोर्ट्रे करना जैसे कि आपको कोई मतलब इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज इतने सारे क्रू मेंबर्स हैं एंड एवरीथिंग, तो कोई हेजिटेशन थी आपको जब आपने ऐसे न्यूड सीन दिया? हाँ एक साक्षी, यार बेसिकली क्या होता है ना कि जब हमारी जब वर्कशॉप जब चल रही थी इससे पहले, शूट से पहले, तो वर्कशॉप में हम लोगों ने एक दो बार बोला सीन करने की कोशिश की थी, नॉट कम्प्लीटली, बस थोड़ा थोड़ा उसका एसेंस लेने के लिए कि उसका क्या उसकी फीलिंग क्या है, क्या वर्ल्ड है वो वाला, जब वो चीज होती है तो उस वक्त क्योंकि मैं थे और हमारे शशि भाई थे जो कि हमारे इंस्ट्रक्टर थे वर्कशॉप के, तो दो ही लोग थे। उस वक्त मैं थोड़ा सा डरा हुआ था अंदर से कि उस वक्त क्या होगा जब हम वहाँ कर रहे होंगे। लेकिन होता क्या है ना कि जब भी इस तरीके की कोई भी जब आप चीज करते हो, कोई नई चीज जब आप करते हो, लाइक मेरा गाड़ी चलाने वाला सीन की अगर हम बात करें, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती थी पता लोग से पहले, मैंने इसी के लिए सीखी है।
तो या फिर मेरा न्यूड वाला जो सीन है, इसका बहुत बड़ा आपको इसका क्रेडिट जाता है जो आपके को एक्टर्स हैं, जो आपके टेक्नीशियंस हैं, जितने भी जो लोग हैं, आप अकेले नहीं कर सकते। तो मैं जब सोच के गया था दिमाग में, वहां जाके मुझे बहुत अलग तरीके से फील करा अविनाश सर ने। अविनाश सर हो गए या मेरे को एक्टर्स हैं अंसारी जो हैं, इशफाक, या फिर जयदीप भाई, जयदीप अलावत, ये बाकी के भी जो लोग हैं, उन सब ने मतलब मुझे स्टार्टिंग में पहली बार क्योंकि एक सीन के बहुत सारे टेक होते हैं, अलग अलग एंगल से शूट किया जाता है, तो पहला जो टेक हुआ था उसमें थोड़ा सा मैं कैरेक्टर छूटा एक दो बार, पहली बार वो हुआ, आप थोड़ा सा आप नर्वस होते हो चीजों को लेके। तो बट उसके बाद अविनाश सर का एक तरीका है, वो कभी भी मॉनिटर पे बैठ के चिल्लाते नहीं है, क्योंकि वो डीओपी खुद होते हैं, वो एकदम आपके पास आते हैं, एकदम आपके इतना करीब आके बैठते हैं, वो आपके कान में बोलते हैं वो। और उनकी एक आदत है, उनको चीज पता है कि एक्टर की जात ऐसी है कि आप उसको अप्रिशिएट करोगे, और अगर वो 10 में से 2 कर रहा होगा तो शायद वो 10 में से 5 करने लगेगा, फिर वो 10 में से 6 कर देगा। तो वो appreciation always works. उनका तरीका यही काम करने का। वो आते थे और वो हमेशा पॉजिटिव बातें लेके आते, आसिफ तुमने ये जो किया ना, ये बहुत प्यारा था, ये वाला थोड़ा सा अपन और अच्छा कर सकते हैं। कभी भी ये नहीं बोलेंगे ये बहुत खराब था यार, या ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो कभी इस तरीके की लैंग्वेज यूज नहीं करते। तो इसलिए मेरा वो जो आसपास का एनवायरनमेंट था वो इतना पॉजिटिव बना दिया था सबने कि फिर हो गया वो। ओके तो कुछ ऐसा रहता है कि क्रू मेंबर्स कम हो जाते हैं ऐसे सीन्स में, या देयर आर सिलेक्टिव पीपल हु आर गोइंग टू शूट, या जैसे मतलब नॉर्मली जो आप लोग की टीम होती है काफी बड़ी होती है, बिकॉज मैं भी मीडिया से रही भी हूँ, मैं भी कॉलेज मेरा सब मीडिया में किया हुआ है, तो आई हैव दिस आइडिया ऑफ हाउ थिंग्स हैपन, हाउ शूट्स हैपन। सो जब ऐसे सीन्स होते हैं तो क्या आपकी क्रू कम हो जाती है, सिलेक्टेड लोग होते हैं, या इट्स द सेम टीम मेंबर्स हु आर डूइंग दिस? एक मिनट मैं आपके एक सवाल का जवाब दे दूं। दिनेश कह रहे हैं मैंने बहुत बार एक सवाल पूछ लिया, आप बता नहीं भाई, मैं आई एम रियली सॉरी, मैं देख नहीं पाया, आप एक दफा और पूछ लीजिए, मैं आपकी बार आपको जवाब देता हूँ। हाँ, तो इस तरीके के जब सीन होते हैं कभी भी, तो हाँ दिनेश ने ये सवाल पूछा था आपसे कि जब आप जयपुर गए थे एक्टर थिएटर में, तो क्या वहां पे आप कोई जॉब करते थे आपकी थिएटर प्रैक्टिस के साथ, है ना दिनेश? आप यही पूछ रहे थे। उस वक्त मैं बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम करता था, बहुत सारे। मेरा एक दोस्त था, वो इवेंट मैनेजमेंट का काम करता था, तो मैं कभी कभी उसके साथ जाके सुपरवाइजरी का काम होता है, मार्केट से आपको सामान वामान लेकर के आना पड़ता, वो मैंने काम किया। और उसके अलावा फिर ये था कि हमारे वहाँ एक ईटीवी राजस्थान पे एक शो आता था दास्तान जो, उसमें डबिंग आपको करनी पड़ती थी, तो वो मैं कभी कर लिया करता था। फिर बाद में ये जी मरुद्रा शुरू हो गया, फिर बाद में क्राइम पेट्रोल आ गया, तो मैं ये सब फिर मुझे मिलने लगे काम। तो मुझे और जयपुर में क्या था, सर्वाइवल बहुत सस्ता था, बहुत सस्ता, मतलब जितना आपका टोटल जयपुर में रहने का खर्चा होता है उतना बम्बई में आपको सिर्फ बिजली का बिल आता है। तो ये फर्क है। तो जयपुर में उतना ज्यादा पैसा बॉम्बे में आपको उतना ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, बाकी सब मतलब पड़ती है ऑफकोर्स जयपुर में, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं थी मुझे जितनी मुझे बॉम्बे में जरूरत पड़ी। Okay, so coming back to the question which I asked, okay, everybody, whoever is watching, please we'll take your questions in the last, so that हमारी conversation break now. Okay, okay. So yes, जो we were talking about how the new scenes are shot. So what was it? How was it like? Tell me, क्या रहता है उसमें? यार उसमें बस बेसिकली ये होता है कि हाँ, जितने जरूरी लोग जो हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरत है, अब उसमें जरूरत में भी क्या है, कैमरा टीम तो वहाँ रहेगी, है ना, डायरेक्टर आपको। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ। सो उसमें कैमरा टीम होती है, पूरी कॉस्ट्यूम टीम होती है, मेकअप टीम होती है, बिकॉज उनको टचअप वचअप करना होता है बार बार बीच में। तो आर्ट टीम क्योंकि सेटअप वगैरह है, तो जो जरूरी लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हर डिपार्टमेंट में अगर नॉर्मली 5 लोग हैं, तो हर डिपार्टमेंट में से 2 लोग रहेंगे वहाँ पे एटलीस्ट। एक उनका जो मेन एचओडी होगा वो, और एक उनके साथ एक उनके जो हेल्प करने वाले वो होते हैं। तो इतने लोग रहते हैं बस, ज्यादा लोग रहते नहीं है। लेकिन अब मुझे मतलब अब मेरा जो मैं बहुत मुझे नहीं पड़ता, सामने 200 लोग। आपका नेटवर्क आई थिंक जा रहा है। हाँ, नाउ इट्स क्लियर। ओके ओके, सो टेल मी, जैसे कि आपने कहा कि आपने आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया, सो डू यू थिंक नाउ आफ्टर 10 years ऑफ योर जर्नी, डू यू थिंक कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट इवन टू एक्सेल इन दिस करियर ऑल्सो? ये एक्चुअली क्या है ना, देखिए ये जो बात है ना, इस बात को बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है बार बार। मैंने कॉलेज सेकंड ईयर करके छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ाई नहीं की। मैंने स्कूल वाली मैंने वो ठप्पे वाली पढ़ाई नहीं की जिसका हर साल रिजल्ट आता है। मैंने उसके बाद वो पढ़ा जो मुझे पढ़ना था एक्चुअली।
मुझे लाइफ में जो पढ़ना था, जो आप मुझे बताओ, आपने जो 8th क्लास 9th क्लास में रात रात भर जग के जो आपने मैथ्स के इक्वेशन सॉल्व किए, वो कहाँ काम आ रहे हैं आपको? मैं तो कभी जगी नहीं बढ़िया, है ना? कहीं काम नहीं आ रहा। मुझे भी लोग देख रहे हैं। आपको वो, आप वो पढ़ो जो आपको पढ़ना है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो मैंने हम्म। एक्चुअली जब कॉलेज तक मैंने पढ़ा, मैंने सेकंड ईयर के भी एग्जाम दिए, सेकंड ईयर में फेल हो गया था। इतनी सारी बैक आती थी हाँ। मुझे कि बैक की दुकान लग जाती पूरी। तो फिर मैंने कहा अब ओके। नहीं होगा मुझसे। तो तो आपने, जब आपको पता था कि लाइक 12th के बाद से आपको पता था कि आपको इसमें ही आना है, एक्टिंग जी, में ही आना है, तो आपने कोई दूसरा कोर्स करने की जगह एक्टिंग का ही कोर्स क्यों नहीं किया पहले से ही? बिकॉज सर 12th में बहुत ज्यादा। जब आप बॉम्बे आए 11th जी के बाद, तब आपको जी 1 साल में काफी क्लियर हो गया था दैट यू वांट टू डू एक्टिंग ओनली, राइट? जी तो फिर आपने जो दूसरा आपने आपका किया ग्रेजुएशन, उसकी जी। जगह अगर आपने एक्टिंग स्कूल में ही कहीं कुछ किया होता, तो वैसा कोर्स आपने क्यों नहीं किया? स्कूल एक्चुअली पूरे इंडिया में हमारे दो एक्टिंग स्कूल हैं जो सबसे बेहतरीन एक्टिंग स्कूल हैं। एक है एफटीआई पुणे और दूसरा एनएसडी दिल्ली। इन हम्म। जब दो स्कूल्स के बारे में मुझे पता लगा, मैं जयपुर जब आया, मुझे आने के 4-5 महीने बाद जब पहली बार जब फॉर्म भरे, लोग तैयारी कर रहे थे, मैंने क्या हो रहा है ये? उन्होंने कहा ये नेशनल स्कूल ओके। ड्रामा की तैयारी चल रही है। मैंने कहा ये क्या होता है? उन्होंने कहा दिल्ली में है, अच्छा। सरकारी स्कूल है ये, और वहाँ पैसे नहीं देने हम्म। पड़ते, फ्री में पढ़ाई होती है हम्म। वहाँ। और अपने को तो ऐसी ओके। चीज चाहिए थी। हम्म। लेकिन तब ग्रेजुएशन शुरू नहीं की थी मैंने, तब मेरी 12th हुई थी। तो अब उसके बाद दिक्कत ये थी कि मैं 3 साल पहले तो ग्रेजुएशन करूं, जो कि मेरे बस का नहीं था। फिर मैं, और हम्म। एनएसडी में एक अटेम्प्ट में आपका होता नहीं है। एनएसडी होता नहीं है। हजारों लोग हम्म। देते हैं, तब जाके 26 लोग सिलेक्ट होते हैं, उसमें बहुत सारे रिजर्वेशन होते हैं। तो हम्म। अब 3 साल वो करूं, फिर 2 साल मैं, 1-2 साल में अटेम्प्ट करूं, फिर 3 साल का एनएसडी। तो 7-8 साल, इतना टाइम मैं सोच के नहीं गया था कि इतना साल में रुकूंगा यहाँ पे। लेकिन रुकेंगे, हाँ। अच्छी चीज क्या रही मेरे साथ कि 2000 जब 12 में गया था, 12-13 मैंने जयपुर में थिएटर किया। 14 में मेरे जो टीचर हैं अजीत सिंह पलावर, वो आए थे। हम्म। और वो एनएसडी में बहुत लंबा टाइम देकर के आए थे, मतलब एनएसडी के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर है वो। तो वो जब आए थे, उनके साथ जुड़ने के बाद उनका प्रोसीजर एक्चुअली वो सेम प्रोसीजर था जो कि एनएसडी में होता है। तो मैंने उनको पहली बार बताया था कि सर मैं, मुझे मतलब मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम की कमी है ये। तो उन्होंने कहा कि जो तुम यहाँ सीख रहे हो, यही सेम चीज तुम्हें वहां भी सिखाई जाएगी। और जरूरी नहीं कि तुम हम्म। एनर्जी जाके बहुत अच्छे एक्टर बन जाओगे या फिर यहाँ रह के खराब एक्टर बन जाओगे। इट डिपेंड, तुम अपने आप पे कितना काम करते हो। तो वही सेम काम तुम यहाँ रह के करो, जितना हम्म। तुम्हें करना, जब तुम्हें लगता है, फिर क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य अलग है, तुम्हें बॉम्बे जाना है, तो तुम एनएसडी मत जाओ। तुम्हें वैसे भी एफटीआई हम्म। जाना चाहिए अगर तुम्हें जाना भी है तो। या फिर मैंने थिएटर में रह के सीखना शुरू किया। मुझे लगा ही नहीं कभी कि मुझे अलग से किसी स्कूल कॉलेज जाके सर्टिफिकेट वाला तो कोर्स करना हाउ डू पड़ेगा। यू फील दैट थिएटर और जो मेन आपकी एक्टिंग इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें कितना डिफरेंस है? थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री में हाँ। जो आप थिएटर में आप जो प्लेस करते हो, और जो यहाँ जी आके जो आप मूवीज के लिए या वेब सीरीज के लिए जो आप शूट करते हो, उसमें आपको जो, जैसे आपने बताया कि वहाँ प्रिपरेशन थिएटर में 2-2 महीने तक चलती है, और यहाँ पे इतना ऐसा नहीं रहता है, तो कितना डिफरेंस आपको फील होता है? और क्या मतलब आपको ऐसा लगता है कि जो थिएटर की प्रोसेस होती है वो फिल्म इंडस्ट्री में अगर अपनाई जाए तो वो ज्यादा बेटर होगी? यार, अपना ही नहीं जा सकता, मतलब बहुत अलग अलग चीजें दोनों, बहुत अलग चीजें दोनों। आप हम्म। सिनेमा में वो सारी चीजें नहीं कर सकते। सिनेमा में बहुत सारा कॉमर्स इन्वॉल्व रहता है, बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे लोग, अब वर्ल्ड हम्म। वाइड हो गया। लाइक अगर हम लोग हम्म। यहाँ, अब जैसे कि पाताल लोक है, जमतारा या पंचायत है, ये सब इंटरनेशनल कंटेंट, बिकॉज इंडिया में आप कुछ बनाते हो पूरी दुनिया देखती है। हम्म। बहुत सारा पैसा और बहुत सारी चीजें हैं। थिएटर का बिल्कुल डिफरेंट। थिएटर एक बहुत ही स्पिरिचुअल चीज है यार, बहुत अलग। ओके। उसका उसकी अप्रोच बहुत अलग है, उसका मीडियम हम्म। बहुत अलग है। हाँ, दोनों में कॉमन चीज है कि एक्टिंग, और उसका फील जो है वो एक्टिंग एक्टिंग होती है। लोग कहते हैं मैं थिएटर हम्म। एक्टर, लोग सिनेमा, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्टर एक्टर होता है सिर्फ। एक्टिंग हम्म। का मेन पॉइंट ये है कि आप मोमेंट ऑफ ट्रुथ कैसे क्रिएट करते हो। उसके पीछे का ओके। आपका होमवर्क जो भी, डजेंट मैटर, आप स्टेज पे कर रहे हो या आप कैमरा पे कर रहे हो। ये एक फर्क होता है कि जब आप स्टेज पे कर रहे हो तो लोग थोड़ा फासले में बैठे हुए हैं आपसे, और हर एक इंसान अलग एंगल से आपको देख रहा है। तो देख रहे आपको हैं। थोड़ा सा हम्म। इनहेंस करना पड़ेगा अपनी परफॉर्मेंस को। जब आप कैमरा हम्म। पे कर रहे हो, करोड़ों लोग एक ही आंख के थ्रू आपको देख रहे हैं। आपके पास हम्म। आंख में इतनी ताकत है टेक्नोलॉजी की कि आप एक अपना आईब्रो भी हिलाओगे तो वो क्लियर दिखेगा। क्लियर दिखे। आपको थिएटर में अगर आप हो तो आपको पूरे हाथ उठाना पड़ता है ना आपको दिखाने के लिए। लेकिन आप हाँ। जब कैमरा पे कर रहे हो तो आपको नहीं करना पड़ेगा। तो हम्म। ये बहुत ही बेसिक चेंजेस हैं। बाकी और मुझे कुछ फर्क ऐसा लगता नहीं कि और कुछ फर्क है, सेम ही है दोनों, ओके। एज एन एक्टर। ओके। सो जैसे आपने पाताल लोक में अभिषेक बैनर्जी के साथ काम किया,
तो कैसे ऐसे एक्टर्स जो मतलब बहुत ही एक्सेल करते हैं अपने खुद के जॉनर में, लाइक अभिषेक बैनर्जी इज अमेजिंग इन वट एवर ना, उनको कोई भी एक्टिंग करा दो वो बहुत ही सही करते हैं। तो ऐसा कुछ इंटिमिडेटिंग होती है ऐसे एक्टर्स के साथ काम करना? डू यू फील एक्चुअली कि? शायद आपको नहीं मालूम है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, अभिषेक बनर्जी मेरे मेंटोर है। ओ, ओके। अभिषेक बनर्जी मेरे 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 गुरु हैं वो, मतलब एक ओ, तरीके से। फिर तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल होगा। हाँ, तो हम अभिषेक बैनर्जी और मैं, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हम लोग 2016 से हम जानते हैं। 2016 में जब मैं दोबारा बॉम्बे गया तो मैंने हम्म। उनको असिस्ट किया। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल मैंने उनका एज एन असिस्टेंट मैंने काम किया उनके साथ। और ओके। तो वो जो 5 साल की दोस्ती थी हमारी, ऑफ कोर्स एक दूसरे को जान पहचान है, जितना क्लोजली हम जानते हैं एक दूसरे को, हम्म। वो बहुत बड़ा मुझे पता। हम लोग दोनों एक सीरीज और कर चुके हैं साथ में, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। टीवीएफ की एक हम्म। सीरीज थी ह्यूमलेसली हॉर्स, सीजन 2, हम्म। हम्म। उसमें हम दोनों साथ में। तो जब भी ओके। हम लोग, एक तो अभिषेक सर जब साथ में होते हैं मेरे, तो एक तो आप एक आप थोड़ा सा होता है ना, कि आपका कोई सीनियर या आपका कोई बड़ा भाई आपके जब साथ होता है तो आपको हाँ, तो आप एक बहुत कॉन्फिडेंट फील करते आप हो। बहुत सिक्योर आप फील करते हो हर चीज को हाँ, लेके। हाँ। हाँ हम्म। मेरा ठीक है, मैं मतलब सिक्योर आता हूँ, तो हाँ, वैसे कोई अगर है बैकअप, राइट। हाँ मतलब जो पाताल लोक में आपको मैं बताऊँ, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी बहुत ज्यादा। हाँ। तो जब हाईवे वाला जो सीन है, फर्स्ट जो चेजिंग सीन है, तो एक दो बार मुझसे गलती हो गई, लाइक मैंने बहुत ज्यादा स्पीड पे मैंने गियर गलत चेंज कर दिया, तो थोड़ा गाड़ी वो हो गया। तो अभिषेक सर पीछे बैठ के मुझे वो बोलते रहते, तो टेंशन मत ले, धीरे चला, अब ये कर, अब ये कर, धीरे से क्लच हम्म। दबा, गियर डाला, अब हम्म। ये कर। हम्म। तो मतलब आप समझ रहे हो वो इमोशन, मैं अभी हाँ, उसको मतलब ही इज कन्वे। लाइक अ बिग ब्रदर टू यू। ओके। हाँ हाँ। हाँ। ओके। ओके, सो अब आपके नेक्स्ट कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? नेक्स्ट मेरा एक एक तो मेरा वेब सीरीज है मिर्जापुर 2 फॉर अमेजोन प्राइम। हम्म। और हम्म। एक फीचर फिल्म है, पगलैट नाम है फिल्म फिल्म का। तो ये बालाजी मोशन पिक्चर्स एंड सिक्का एंटरटेनमेंट की फिल्म है। तो ये ओके। दो प्रोजेक्ट ये ये जल्दी आपके शूट। आप किसके साथ स्टार करने वाले हैं आप ये पगलेट में? पगलैट में हमारा मेन कैरेक्टर जो प्ले कर रही है वो है सानिया मल्होत्रा। ओके। और मैं एक सपोर्टिंग कैरेक्टर में प्ले कर रहा हूँ। ओके। ओके। ग्रेट। तो अभी आपका ये क्वारंटाइन पीरियड कैसा निकला? अब शूट्स हो नहीं रहे, सिर्फ इंटरव्यूज इंटरव्यूज हमने ही भी चल रहे किया है, होंगे, आई एम श्योर। हमने क्वारंटीन में भी शूट किया है, मतलब ओ। अंदर बैठे बैठे, घर बैठे बैठे। जी। हाँ। तो ओके, वो ग्रेट। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरे लिए। मैंने शुरुआत बहुत अलग तरीके से हुई थी, धीरे धीरे आगे हम्म। बढ़ता गया, चेंजेस आते गए। जैसे कि शुरुआत जब हुई थी तो एक अलग एक्सपीरियंस था सबके लिए। यार दोस्तों हम्म। में बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बन गए, लूडो का एक अलग ग्रुप हाँ, बन गया, PUBG का एक अलग लूडो का ग्रुप बन ग्रुप बन गया। गया। PUBG में नहीं खेलता, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं मुझे, पबजी खेलो हमारे साथ। हाँ। मैं PUBG खेल, मुझे आता नहीं हाँ। खेलना। तो गेम्स वाले बन गए बहुत सारे, अंताक्षरी के ग्रुप बन गए। आपको इनके बारे में क्या कह अब रहे थे? अनुराग पूछ रहा है कि आप अपने इंदौर कनेक्शन के बारे में बताइए प्लीज। अनुराग मेरा बहुत जिगरी मेरा दोस्त है, अनुराग। और एंड ही इज फ्रॉम इंदौर। तो मेरा मैं भी इंदौर इंदौर कनेक्शन। से हूँ। अनुराग ओ मेरा भी जिगरी है। यस। नाइस नाइस, तो मेरा इंदौर कनेक्शन मेरा भाई अनुराग है। ओके। अब आपको हाँ, लिसन अनुराग, हम दोनों हैं इंदौर कनेक्शन अब से। ओ, ग्रेट। सो आपकी जो पूरी 10 साल की जर्नी रही है, सबसे बड़ी सीख आपकी क्या रही है अभी तक की? सबसे बड़ी सीख मेरी ये रही है, मतलब ऐसे तो खैर अभी तो जर्नी शुरू करी है मैंने। मैं जी बहुत भारी कोई बात बोल दूंगा तो मेरे दोस्त जूते मारेंगे मुझे। लेकिन ये है पर कि हाँ स्टिल मैंने जर्नी आपकी अभी, अभी जो आपका काम भी रिकग्नाइज होना अब स्टार्ट हुआ है, बट आप काम तो पिछले 10 साल से कर रहे हो ना, तो देर इज समथिंग विच यू हैव टेकन फ्रॉम दिस होल जर्नी, राइट? मुझे एक सबसे बड़ी सीख जो मुझे मिली ना, वो ये है कि आप आप में और कुछ हो ना, आपको सब्र करना आना चाहिए। हम्म। आपका टाइम जरूर आएगा, एक ना एक वो दिन जरूर होगा जब आप जो एक्चुअली आप जो करना चाहते हो आप करोगे। चाहे हो सकता है कि हम्म। उस काम करने के लिए आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। उसमें आपको, जैसे मैं बहुत अलग अलग जॉब्स मैंने भी की हैं लाइफ में, और बहुत सारे दोस्त मेरे कर रहे हैं अभी भी, जो कि शायद हम्म। उनको उनका भी सबको पता लगेगा जब जिस दिन वो कुछ इंशाल्लाह बहुत अच्छा बन कुछ बड़ा जाएंगे। कर। पता है एक्चुअली हम्म। सबको कब लगता है ना, जब आप जब आपको कुछ रिकग्नाइजेशन मिलने लग जाता है। तो सब्र हम्म। करना आपको आना बहुत जरूरी है। आप कितने भी टैलेंटेड हो, चाहे आप कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर। क्योंकि बंबई में आपको हमारी इंडस्ट्री में काम सिर्फ टैलेंट पे नहीं मिलता है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। बहुत सी बार ये होगा कि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, आपके लुक में वो कैरेक्टर नहीं है, आपकी एज में वो हम्म। कैरेक्टर नहीं है। बहुत सारी चीजों का हम्म। मिश्रण बन कैरेक्टर के एक्टर को मिलता है। आपकी एज, आपका लुक, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, हम्म। आप भाषा क्या बोलते हो, ये सारी हम्म। चीजें में आपको होने के बाद आप
आप आपका वो टैलेंट वाली बात आती है। तो सब्र करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग जो भी देख रहे हैं, बडिंग एक्टर्स जो हैं, जो कि शायद कुछ महीनों या सालों से मेहनत कर रहे हैं, अभी तक नहीं मिला, तो आपको थोड़ा सा रुकना रुकना चाहिए, मिल जाएगा तो इंशाल्लाह। जैसे कि ये बडिंग एक्टर्स, आप भी एक टाइम पे एक बडिंग एक्टर थे, आपने भी मतलब जैसे सक्सेस मिलती है तो उसके साथ रिजेक्शन भी आता है, और बिल्कुल। इनफैक्ट रिजेक्शन ज्यादा आता है, सक्सेस बहुत लेट मिलती है। तो उस जी। रिजेक्शन से हाउ डिड यू डेल्ट विद द होल रिजेक्शन प्रोसेस, कि कहीं आपको लगा कि नहीं ये रोल तो मुझे मिल ही जाएगा, या कहीं पे आपको लगा कि नहीं ये चीज तो बहुत पक्के दफा से मुझे हो ही बहुत जाएगा? दफा एग्जैक्टली बहुत बार हुआ होगा। तो मतलब आपने जैसे अभी हम देख रहे हैं कि बहुत लोग ये क्वारंटाइन में लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे एक्टर्स ने सुसाइड कर लिया, बहुत सारे, एक इंदौर की ही एक्ट्रेस है जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि बिल्कुल। पिछले 1 साल से उसको काम नहीं मिल रहा था, तो नो शी वाज इनटू डिप्रेशन एंड शी हैड अ सुसाइड। सो मतलब ऐसे लोगों के लिए आपको, आपके पास क्या मैसेज है कि रिजेक्शन से डील करना बहुत टफ होता है, बट यार आपके तरीके से तो आपने कैसे डील किया? आप क्योंकि जिंदगी में, आप जब भी जिंदगी में जब भी कभी आपको जो बहुत बड़ी कामयाबी जब भी मिलेगी इंशाल्लाह, तो वो कामयाबी को आप समझ पाओगे, उसकी वैल्यू आप तभी कर पाओगे जब आपके पास रिजेक्शन का बहुत सारा भंडार होगा। रिजेक्शन हम्म आपको लाइफ में बेटर बना के जाते हैं, बहुत सारी चीजें सिखा के जाते हैं, जो आपको कामयाबी कभी नहीं सिखा सकती, क्योंकि कामयाबी जब आपको मिलती है ना, आप अंधे हो चुके होते हैं, हम्म आपको तो कुछ नहीं पता होता। कुछ नहीं इसका एक पता बहुत होता छोटा सा है। एग्जाम्पल है, इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल की जब पाता लोग पसंद करके मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट दिए अच्छे अच्छे, उस वक्त मैं हम्म ये नहीं देखूंगा बंदा क्या करता है, ये इसको आर्ट की कितनी समझ है, बस हम्म उस एप्रिसिएशन को उसने मैं दिल से अच्छा लगा लेता हूँ। दिल लेकिन से जब लगा वही ले, सेम हाँ। क्रिटिसाइज करता है, तब मैं क्यों बोलता हूँ यार ये क्या बोल रहा है, इसको क्या पता है। ऐसा हम्म नहीं होता। तो आपको आपको जब तक आप रिजेक्शन आप हैंडल नहीं करना जानते, आपको कामयाबी का स्वाद पता ही नहीं लगेगा कभी जिंदगी में, आप उसमें खुश ही नहीं हो पाओगे। हाँ, तो वो वही वही कामयाबी मैं जानना चाह रही हूँ कि मतलब जैसे किसी दिन आप कोई काम ढूंढने गए, उस दिन आपको, आपने किसी कास्टिंग डायरेक्टर के पास गए, आपने वहां पे जाके अपना शूट दिया, आपने जो भी उसने कैरेक्टर प्ले करने के लिए आपको बोला आपने किया, और फिर आपको लगा आपने बहुत अच्छा किया और आपको ये वाला सीन तो आपको मिल ही जाएगा, या ये जो भी प्रोजेक्ट है आपको मिल ही ये जाएगा, हर एंड देन ऑडिशन के बाद यू लगता है। यू गेट, हाँ सॉरी, ये मुझे हर ऑडिशन के बाद लगता है कि ये मुझे मिल हर जाएगा। ऑडिशन के, नहीं एग्जैक्टली लगता। exactly. और फिर बहुत सारे ऑडिशंस ऐसे भी होंगे जहां आपको नहीं मिला वो प्रोजेक्ट, तो फिर हाँ, जो वो पूरी प्रोसेस होती है उस रिजेक्शन को आप अंदर उतार के उसको, मतलब जहर का घूंट पीने वाला जो सिचुएशन होता है, वो आप कैसे हैंडल करते थे? बिकॉज यार इसका वन, एक 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 तरीका होता है बहुत छोटा कि, इंसिडेंट बताता हूँ इस पे, बहुत छोटा इंसिडेंट मैं हाँ, बताता हूँ। सेक्रेट गेम्स 2 की कास्टिंग चल रही थी, हम्म और मैं जैसे कि बताया, मैं अनुराग सर के साथ काम करने के लिए मर रहा था मैं, कि मुझे अनुराग सर के हम्म साथ काम करना है। हम्म तो मैं सेक्रेट गेम की टीम के पास मैं गया, उन लोगों मैंने कहा प्लीज गाइस मुझे ऑडिशन कर लो यार, प्लीज मुझे ऑडिशन कर लो। मैं 4-5 बार चला गया उनके पास, वो लोग कहते हैं हाँ हम हाँ बताते हैं हम बताते हैं हम बताते हैं। मैंने कहा यार क्यों नहीं कॉल कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, प्लीज यार मुझे करो यार, हम्म मुझे काम करना है, मुझे काम करना है। 4-5 बार मैं गया, तो उन्होंने उनमें से जो एक टीम में जो कर रहे थे एसोसिएट, तो उन्होंने कहा ठीक है कैरेक्टर तुम्हारे लिए एनडीए फॉर्म भर दो। नेटफ्लिक्स ने नया हम्म सिस्टम निकाला कि ऑडिशन देने से पहले आपको एनडीए भरना पड़ेगा। मैं गया एकदम, और हम्म एनडीए एकदम कॉन्ट्रैक्ट जैसा वो था। मैं गया, मैंने पूरा साइन वाइन किया, मैं खुशी खुशी घर आया। मैंने कहा चलो अनुराग सर की फिल्म के लिए ऑडिशन देने का मौका मिल रहा है, तो मैंने कहा मैं अपना 200% दूंगा, और मुझे पता है ये कैरेक्टर मुझे मिलेगा। अंदर से एक गट हम्म फीलिंग हुई। मैं 2 दिन हम्म इसको तो मैं प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ये चीज उनको अच्छी लग जाती है, ऐसा करूंगा। फाइनली मुझे पता लगा कि उस कैरेक्टर का ब्रीफ चेंज हो गया, उसकी एज बढ़ गई। ओके अंदर से ओके, बहुत एकदम ऐसा लगा कि कुछ टूट गया अंदर से, कि क्यों नहीं मैं, हम्म मेरा बस चला। अगर अभी भी अगर मुझे पूछो कि आपकी ख्वाहिश क्या है, मैं टाइम ट्रेवल करके पीछे जाऊंगा और अपने आप को ब्लैक फ्राइडे में कास्ट कर दूंगा, ओ ओके, सीरियसली। तो वैसा एकदम टूट गया अंदर से। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है यार, क्यों नहीं मिला मुझे, क्यों नहीं मिला। सीरीज बन गई, सीरीज शूट हो गई, मेरे कुछ दोस्तों ने काम किया उसमें। सीरीज हम्म बनने के 5 महीने बाद मुझे मेरे एक कास्टिंग डायरेक्टर उनका कॉल आया। हम्म वो कहते हैं कि भाई हम लोग ना एक सीक्रेट गेम का मिनी एपिसोड शूट हो रहा है, उसकी कास्टिंग चल रही है, तुम आके ऑडिशन दे दो। तो हम्म मतलब मैं एकदम 5 महीने बाद, आप सोचो कि किसी एक चीज पे आपको आपको रिजेक्शन मिल हाँ, गया, मतलब कुछ 5 महीने उम्मीद ही बाद नहीं मुझे थी। call आया। हाँ, 5 महीने बाद मुझे कॉल आया कि इसका एक मिनी एपिसोड बना रहे हैं अलग से, नेटफ्लिक्स बना रहा है, उसके लिए आप ऑडिशन देने आ जाओ। मैं भागता हूँ, हम्म मतलब अराउंड को 2-2:30 बजे कॉल आया था कि नेक्स्ट डे करते हैं। मैंने कहा आज ही करेंगे हम ऑडिशन। मैंने कल हाँ तक अगर ओके, किसी और ने कर लिया, मैंने मुझे आज ही देना है। सेम डे मैं गया, हम्म शाम को हमने ऑडिशन ऑडिशन किया, और एक एक सीन, मतलब एक बार में नहीं हुआ वो, 2-3 बार किया हमने। मैंने उनको बोला, मैंने कहा हम्म आप 2 घंटे मुझे टाइम दो ना प्लीज, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। मैं दोबारा गया, अच्छा, थोड़ा अपने आप को रिफ्रेश करके आया, फिर वापस आया।
उसका ऑडिशन किया, फाइनली फिर वो जो सेक्रेट गेम्स 2 का जो मिनी एपिसोड है वो मुझे मिला। तो इनडायरेक्टली ओके, रिजेक्शन आप जो पूछना चाह रही थी कि रिजेक्शन हाँ अगर आप रिजेक्शन। पॉजिटिव नहीं लोगे तो फिर आपको कभी भी उसका आप कामयाबी आपको समझ में नहीं आएगी किस तरीके की हाँ मिली है बिकॉज क्या। ये जो आपके जैसे एक्टर्स जब इस तरह का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो ये ऐसे एक्सपीरियंसेस एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन या बूस्ट होता है बडिंग एक्टर्स के लिए, जो बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं, या जो जिनको कॉन्स्टेंटली रिजेक्शन मिलता ही रहता है, एंड दे आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट वन मोमेंट कि उनको उनकी लाइफ में कुछ बेटर हो जाए। So that's why I wanted to know कि how did you deal with this whole point of rejection thing in your life? So great. Okay, so last question was कि इंदौर ने अनुराग ने बोला कि वो इंदौर का कनेक्शन उससे रिलेटेड नहीं, किसी और रिलेटेड से वो बोल रहा था, तो किसी और रिलेटेड से क्या है इंदौर कनेक्शन? यार सब इंदौर में काफी सारे दोस्त हैं मेरे, मेरे नाना इंदौर ओके, से। ओके, यस। ओके, और ग्रेट। तो मैं किसी को डेट कर रहा था तो वो इंदौर से थी। ये सुनना चाह रहा था ना भाई अच्छा, तभी अभी नहीं है मेरा तो ब्रेकअप आप तो अभी भी डेट कर रहे हो या हो गया काम? हाँ जी क्या। अभी भी आप डेट कर रहे हो इंदौर से किसी को, नहीं या नहीं बस नहीं अभी हो गया नहीं। डन? इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारा इंदौर कनेक्शन क्या था। क्या था? तो वो हाँ, है। उसने बोला मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, उसने ऐसा बोला। तो ऐसा था। ओके, सो व्हाट इज गोइंग ऑन करंटली इन योर लव लाइफ? जैसे अभी आपने पॉइंट निकाला है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। कुछ नहीं यार मैं सीरीज एनीबडी यू आर डेटिंग राइट नाउ? नहीं नहीं यार मैं बिल्कुल सिंगल हूँ। टोटली सिंगल। बिल्कुल, अभी तो सारे एक्टर्स ऐसे ही बोलते हैं, कहीं पीछे पीछे फिर नहीं किसी ना नहीं, किसी को मैं डेट कर रहे फिलहाल मैं होते हैं। फिलहाल अपना करियर को डेट कर रहा हूँ कुछ टाइम से। ओके, ओके, दैट्स द बेस्ट गर्लफ्रेंड यू कैन हैव, राइट? यस यस। ओके, वन ऑफ द व्यूअर्स आस्क्ड कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मेरे फेवरेट एक्टर दो हैं। मैं हर इंटरव्यू में ऑलमोस्ट भूल चुका हूँ, ये शाहरुख खान एंड इरफान खान। दो हाँ, मेरे फेवरेट है। दो मतलब मेरे जिनसे सबसे ज्यादा इंस्पायर हुआ मैं लाइफ में। बेस्ट एक्टर मुझे लगता है कि इंडिया के दो बेस्ट एक्टर हैं एक्चुअली, शाहरुख खान और इरफान खान। तो ये दोनों ओके, हैं। okay, great. Any message you want to give to our viewers? मैसेज तो यार मतलब बहुत जबरदस्त, मतलब ये तो लोग जो भी हैं देख रहे हैं, इन लोगों की वजह से मेरा मेरा लॉकडाउन बहुत ही हैपनिंग हो गया, क्योंकि मैं रोज लाइव आता हूँ, ये लोग आते हैं रोज रोज सुनने देखते के हैं। लिए, कमेंट्स करते हैं बहुत सारा, अपना इतना कीमती टाइम मुझे देते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस। अभी जब तक चलता रहेगा ये, हम ट्राई करेंगे आपको एंटरटेन करने के लिए। आप आते रहिए, बस यही है, बाकी घर ओके, पे रहो बस। ग्रेट। सो गाइस, जब मिर्जापुर 2 रिलीज होगा तब हम आसिफ को फिर से लाएंगे फॉर लाइव, है ना हाँ आसिफ? यूल कम राइट? यस है यस ना, यस अब हम फ्रेंड्स हैं। यस। मैं आपके 2 मिनट ले लूँ प्लीज, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ बहुत सारे लोग कमेंट कर हाँ रहे हैं। जी, बोलिए प्लीज। मैं बाद में करने तो मुझे गाली पड़ती है। हाय आंचल, आंचल अमर, हाय एस सिंह। यार एक तो शॉर्ट फॉर्म में नाम मत रखा करो, आप आपका नाम नहीं ले पाता हूँ पूरा। सनय हाय, विपुल रॉक्स हाय ब्रो, विदित हाय, राहुल झा हाय 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 हाय, अनिल, अनिल चितवाई हाय अनिल, दिनेश हाय हाय हाय, हेलो हेलो हेलो। और एक कौन जना है। पूछ रहा है कि कब होगा रिलीज मिर्जापुर 2? इसी साल। इसी साल? ओके। और अनुराग जी अभी भी आप यही हैं क्या। मास्टर जी कौन थे। मास्टर जी वो आपको पता लग जाएगा, मतलब कैसे बताऊं मास्टर जी को, मतलब यार वो उसको बंद ही रहने दो, कुछ चीजें बंद अच्छी लगती हैं बहुत। और क्या, और कौन है, अनिल हाय अनिल। और कौन है, ये विपुल रॉक्स के बहुत सारे मैसेजेस हैं। हाय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना सारा प्यार दिया। आपने, आप कह रहे हैं गाना सुना, तो भाई मैं गाना अगर मैंने सुना दिया तो मैं इंस्टाग्राम डिलीट कर दोगे। साक्षी हाय हाय साक्षी, सनय हाय, कुमार रजत ओके, हाय भाई। वन ऑफ द व्यूअर्स इज आस्किंग कि कैरेक्टराइजेशन का कुछ बताइए, मतलब आई डोंट नो व्हाट डज ही मीन बाय इट, बट इफ यू कुड यार अंडरस्टैंड। कैरेक्टराइजेशन का बेसिकली मीन ये होता है कि उस कैरेक्टर को बनाते वक्त, आप दिमाग में बिल्ड करते वक्त, प्ले करने से पहले जो वर्कशॉप आपका पीरियड होता है, उसमें आप क्या क्या प्रिपरेशन किस तरीके से करते हो इन शॉर्ट। मेरे ओके। मेरे एक डायरेक्टर थे, मोहित टकलकर नाम है उनका, थिएटर डायरेक्टर है। हम्म, उनके साथ मैं हम्म, काम कर रहा था, उन्होंने तो उससे पहले हम क्या करते थे ना, हम बहुत किताबें किताबें पढ़ते थे थिएटर डेज में, ये कर लें वो कर लें, मेथड एक्टिंग कैसे होती है, ये कैसे होता है, अभी हम्म, गाँव वाला जो धोती पहन के घूम रहे हैं हम रोज, ये। उन्होंने एक बहुत सीधी सी एक चीज बताई थी, सिंपल एक लाइन में, कि आप जो भी कैरेक्टर कर रहे हो,
लाइक जब आप मैथ की कॉपी जो है ओके आसिफ आई हैव टू आई थिंक ये 21 सेकेंड्स में बंद हो जाएगा लाइव आप रिकनेक्ट कर लीजिए उसका। हाँ। ओके तो एक मिनट आई एम रिकनेक्टिंग यू ओके